Oh wow, such an awesome car our Lord Jesus gave me. Thank you, Jesus. Hallelujah. Heavenly Father, thank you, Lord, for blessing me with this wonderful car, Lord. Lord, whenever I will travel in this car, please be with me, Lord. I ask this prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. I am here, my child. Oh Lord, is it really you? Jesus, please sit on the front seat. Jesus, can I call my wife and give her the surprise? She will be very happy. Hello? Hello, Hey, where are you? I'm at Maxis Mall, came for shopping. Okay, wait. I'm coming to pick you up. I have a very big surprise for you. Oh, really? Yeah. Come fast. Okay, bye. Okay, bye. Tada! I bought this car. How's it? Oh my god, that looks so wonderful. By the way, which car is it? It's whipped. Oh, won't you give me a ride on your new car? Yeah, sure. Why not? Please sit. Who's this on the front seat? He is our Lord Almighty Jesus Christ. Whatever, ask him to get up. I want to sit here. Oh, okay, wait. I will do something. Jesus, can you please sit behind? My wife wants to sit here. Now sit. Don't be angry. Hello? Hey dude, where have you been? You don't even hang out with us nowadays. It's nothing like that, yeah. By the way, I have bought a new car and I'm on a ride with my wife. Will you join with me? Oh, for sure. Okay, where are you? We are at Naugar Road. Pick us. Okay, catch up soon. Bye. Bye. Hey, Hey buddy. get in please. Wait, who's that? He is the Lord Almighty Jesus Christ. You both can sit on other two seats. No, we don't want to. We want to sit there only. Ask Jesus to shift to other seat. Okay, wait, I'll do something. Jesus, can you please shift aside? My friends want to sit here. Please, Jesus.
Yeah, actually, I'm on ride with my friends on my new car. Wow, you bought a new car. Yeah, Congrats. thank you. Let me join with you, please. Yeah, sure. Why not? Where are you? I'm at SV Road. Okay, wait. I'm coming. Yes, come fast. Okay, bye. Bye. OMG, it's really fab. Thank you so much. Bro, where should I sit? Oh shit. I forgot that there is no seat left. I can't ask to say no her. I can't ask my wife to get up. I can't ask my friends to get up. What shall I do? Shall I ask Jesus to get up? Okay, wait, I'll do something. Uh, Jesus, uh, can you please leave the car? Actually, there is no seat left, and my cousin also wants to sit here. Please, Jesus. Sana, can you put on some music? Yeah, let's play some loud music and chill out. Yeah, sure, why not? Yay! Oh shit. Oh Jesus, I'm so evil that I left you for others. Lord, I'm really very guilty, Lord, for I left you for others. Jesus, please forgive me and my sins, Lord. Lord, thank you, Lord, for saving me, my wife and my cousins. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, God, for saving us. We won't leave you again.
Yes, Lord. Thank you, Lord. Praise God, everyone. Amen. Praise God. Round of applause for them. So, first of all, I want to thank our respected pastor and our whole youth team for setting up this beautiful skit. Amen. So, my friends, did we just learn about the importance of Jesus in our life? I want to ask you all, did we just learn about the importance of Jesus in our life? Yes or no? Yes. So the answer is yes. जैसे कि हम सब ने अभी देखा, जब जीसस उस कार में थे, वो कार टोटली सेफ था, टोटली प्रोटेक्टेड था, ठीक हमारी लाइफ की तरह। हमारी लाइफ में जब जीसस होते हैं, तो हमारा लाइफ टोटली सेफ होता है, टोटली प्रोटेक्टेड होता है। At last, He is the reason we are able to watch this beautiful sunset, beautiful sunrises. Amen. फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा जब जीसस को उस कार से निकल जाने बोला, तो जीसस चुपचाप चले गए। पर आगे जाके क्या हुआ? वो आगे जाके वो कार क्रैश हो चुका था, टोटली मैसअप हो चुका था, ठीक हमारी लाइफ की तरह। हमारी लाइफ में जब जीसस को कम इम्पोर्टेंस मिलने लगता है, हमारा लाइफ उस कार जैसा क्रैश होने लगता है, राइट? तो इससे हमें क्या सीखने मिलता है? What do we learn from this? Never give up on Jesus. Amen. At any cost, never give up on Jesus. Amen. Never give up because He is the only one that can protect us. Hallelujah. Amen? So let's move ahead toward our worship session. I would like to ask Brother Jeremiah to come on stage and pray for the session. Loving Heavenly Father, we all of us have come together to thank you and praise you, my Lord. Lord, you please guide us and support us in our worship today, Lord. Lord, help us in our preaching, Lord. Lord, please guide, Lord, who is preaching today, Lord, guide them like a shepherd, Lord. Lord, who is singing today, Lord, who is worshipping today, Lord, guide them like a worship, Lord. As you guided Moses, Lord, guide us today, Lord. Lord, please be with us in this worship, Lord, and this meeting, Lord. Lord, please be your presence, change everyone's life in this meeting, Lord. Amen. Everyone who is present here, Lord, change their life by your word, Lord. Yes, Lord. No one should be in a bad habits or anything bad, Lord. Everyone should be spiritual and grow more in the Spirit, Lord. Amen. May your Holy Spirit be in this place and guide us, Lord. In Jesus' name I ask, Amen. Amen. I would like Brother Brand to come and take over the stage for the worship. Hallelujah. Praise the Lord, Gospel Vibrants. क्या आप सब तैयार हैं प्रभु की आराधना करने के लिए? सभी लोग, यस? सभी लोग, कितने जन यहाँ पे है? सभी लोग आप हाय यस बोलेंगे? आइए हम उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। तुझ बिना आसरा मेरा है ना कोई, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कोई, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना
तू प्रभु वचनों से तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनके रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी रहूं चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनके रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान प्रभु तुझ में आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। जब कभी तेरी ओर देखा मैंने, देख कर मुझको मुस्कुराया तूने। जब कभी तेरी ओर देखा मैंने, देख कर मुझको मुस्कुराया तूने। जब कभी तेरी ओर देखा मैंने, देख कर मुझको यीशु मुस्कुराया। तू सुनता है, तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊँ कहाँ। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊँ कहाँ। तू सुनता है, तू सुनता है
सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। मेरे मार्ग को बनाया है तूने, साथ मेरा निभाया है तूने। मेरे मार्ग को बनाया है तूने, साथ मेरा निभाया है तूने। मेरे मार्ग को बनाया है तूने, साथ मेरा निभाया है तूने। अब तू ही है मंजिल मेरी, अर्पण है ये मेरी जिंदगी। अब तू ही है मंजिल मेरी, अर्पण है ये मेरी जिंदगी। अब तू ही है मंजिल मेरी, अर्पण है ये मेरी जिंदगी। अब तू ही है मंजिल मेरी, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। जब कभी तेरी ओर देखा मैंने, देख कर मुझको मुस्कुराया तूने। जब कभी तेरी ओर देखा मैंने, देख कर मुझको मुस्कुराया तूने। जब कभी तेरी ओर देखा मैंने, देख कर मुझको मुस्कुराया तूने। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। तू सुनता है, तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे
सिवा मैं जाऊं कहाँ। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे। धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर तो मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे। धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको। तुझसा इस जहाँ में और कोई है नहीं। तुझ में आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में दिया तुम मेरे। तू ही मेरा सर्वस्व यीशु। तुझसा इस जहाँ में और कोई है नहीं। तुझ में आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में दिया तुम मेरे। तू ही मेरा यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे। तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे। तेरी आराधना, आराधना
प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना। El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना। El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना। El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हाथ उठाकर। उस खुदा ने हमें एक अच्छा मौका, एक अच्छी आराधना ब्रदर ब्रायन के द्वारा दी है। हम पास्टर एल्विन का हम थैंक करेंगे क्योंकि उन्होंने इस ये यूथ नाइट का ऑर्गेनाइजिंग किया है। और पास्टर एल्विन ने आज ये बता एक बिग अपॉर्चुनिटी हमारे यूथ के बीच में रखी है। उन्होंने एक प्रीचिंग का मौका हमें दिया है। I will ask Sister Hepzibah to come upon the stage and वो आज हमें प्रीचिंग के द्वारा हमें एक अच्छा मैसेज देगी। वो मैसेज लेकर हम यहाँ से जाएंगे, हम विश्वास करते हैं। इसलिए उसके लिए हम जोरों से तालियां बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड गॉस्पेल वाइब्रेंस। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया प्रीच करने के लिए। और मैं पास्टर एल्विन का उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो हम यूथ को इतना एनकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं परमेश्वर का वचन आप सबके बीच में बांट सकूं। So today I am going to preach about a person आज मैं एक व्यक्ति के बारे में प्रचार करने जा रही हूँ who was once rejected by everyone, जिसे सभी कभी ने ठुकराया था, but one day he became a mighty warrior, a mighty man of God. और एक दिन वो पराक्रमी योद्धा बन गया, परमेश्वर का शक्तिशाली व्यक्ति। His name is Jephthah. और उसका नाम है इब्तिया। The story of Jephthah is one of the most encouraging but at the same time most tragic story in the Bible. इब्तिया की कहानी उत्साहजनक में से एक है, लेकिन साथ ही दुखद कहानी है बाइबल में। He earned name and respect in the age of 25. 25 साल की उम्र में उसने अपना नाम कमाया। Most of the people earn respect and name in the age from 40s to 60. ज्यादातर लोग अपने 40 से 60 साल की उम्र में नाम और सम्मान कमाते हैं। If we see in the age of 20, our studies have been completed. अगर देखा जाए 20 साल की उम्र में पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। So we look for our jobs, for our settlements, for our own house, marriage. फिर हम नौकरी, खुद के घर की तलाश, विवाह की तलाश में रहते हैं। And this continues till the age of 40. और ये 40 साल की उम्र तक चलता है। And after that, we earn that name and respect for ourselves. उसके बाद हम अपना नाम कमाते हैं। But Jephthah earned name in a very young age of his life. लेकिन इब्तिया ने बहुत ही कम उम्र में नाम कमाया। The reason behind this is written in the book of Judges, chapter 11, verse 11. इसके पीछे का कारण लिखा है न्यायों की पुस्तक 11वां अध्याय का 11वां वचन। It says that he used to utter all his words before God in the place called Mizpah. यह कहता है कि इब्तिया अपनी सब बातें मिस्बा में यहोवा के सामने कहता था। Now, my dear friends, a question arises here that at such a small age, what kinds of problems he was facing. मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि बहुत ही कम उम्र में इब्तिया को कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। The first problem is written in Judges chapter 11 verse 1. इसके पहला कारण लिखा है न्यायों की पुस्तक 11वां अध्याय का पहला वचन। It says that Jephthah's mother was a prostitute. ये कहता है कि इब्तिया की माँ वेश्या थी। So this is certainly an act of infidelity on the part of his father. इब्तिया की माँ ने अपने पति के साथ बेवफाई की थी।
Jephthah's mother sinned and Jephthah's mother sinned and he came into the world. इफ्ते की माँ ने पाप किया और इफ्ते इस जगत में आया। At a very young age, Jephthah had to deal with the result of his mother's sins. बहुत ही कम उम्र में इफ्ते को अपनी माँ के पापों का परिणाम भुगतना पड़ा। The second problem was the house in which he was born, दूसरा कारण है जिस घर में वो पैदा हुआ, in which he was grown up. जिसमें वो बड़ा हुआ, There he was rejected by his own brothers, अपने भाइयों से वहाँ ठुकराया गया था, saying that you aren't going to get any share of family's property because you are the son of another woman. यह कहते हैं कि तुझे परिवार की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला है क्योंकि तू पराई स्त्री का बेटा है। And the third problem was he ran away from his brothers and became orphan in a very small age of his life. तीसरा कारण है वो अपने भाइयों के भाग से भागकर अनाथ बन गया बहुत ही कम उम्र में। Verse 3 says that he was gathered among people who weren't good for anything. वचन 3 कहता है वो उन लोगों के साथ रहा जो कि अच्छे नहीं थे। So when did Jephthah became a warrior? तो इफ्ते कब योद्धा बना? When the Ammonites threatened war against the Israelites, जब अमोनियों ने इजराइल के विरुद्ध धमकाया, the elders of Gilead came to Jephthah तब गिलाद के पुण्य इफ्ते के पास आए and asked him to lead their army against them. और उससे विनती की कि वह उनसे उनकी सेना का नेतृत्व करे। So before going into the battle, Jephthah made a promise with God युद्ध में जाने से पहले इफ्ते ने परमेश्वर से मन्नत मानी that if the Lord gave him victory, यही यदि परमेश्वर उसको जय प्राप्त कराए, then he would make a burnt offering of the first thing he saw coming out of his house. तब उस पहली वस्तु का होम बलि चढ़ाएगा जिसे उसने युद्ध के बाद अपने घर से निकलते हुए देखा था। The Spirit of the Lord came upon Jephthah. परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरी। He led the army to destroy 20 Ammonite towns. वो 20 अमोनी नगर को नष्ट करने के लिए सेना का नेतृत्व किया And the people made him their leader and commander. और लोगों ने उन्हें अपना प्रधान और सेनापति बनाया। And Jephthah also ruled Israel over 6 more years. और इफ्ते ने इजराइल पे 6 वर्षों तक शासन किया। So, my dear friends, problems coming in life doesn't make us weak, but it makes us strong. मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में आने वाली समस्या हमें कमजोर नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाती है। Hard times are often blessings in disguise. कठिन समय अक्सर बीच में आशीर्वाद होता है। Sometimes life is difficult, or you may feel like that your situation is hopeless, जीवन कभी कठिन होता है या आप समझते कि हमारी जीवन आशाहीन है, or that no one can understand what you are going through in your life. कोई नहीं समझ सकता कि आप कौन से दौर से गुजर रहे हैं। But there is one person who knows everything about you, God. एक व्यक्ति है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है और वो है परमेश्वर। No matter how difficult things seems to be, चीजें He is in control. He loves you and He knows you personally. वो नियंत्रण में है, वो आपसे प्यार करता है और वो आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है। Jephthah's accomplishments was he led the Gileads to defeat the Ammonites. अमोनियों को हराने के लिए उसने गिलियाद का नेतृत्व किया। He became a judge and ruled Israel. वो न्यायी बना और इजराइल पर राज्य किया। And Jephthah is also mentioned in the Faith Hall of Fame in Hebrews chapter 11. इब्रानी की पुस्तक 11वां अध्याय में इफ्ते को विश्वास का नायक कहा गया है। Jephthah's strength after Spirit of the Lord came upon him. इफ्ते पर परमेश्वर की आत्मा उतर गई। He attempted to negotiate with the enemies. वो अपने दुश्मनों के साथ बातें करने लगा। Jephthah also called on the Lord, इफ्ते ने उस परमेश्वर को पुकारा who endowed on him with supernatural strength. जिसे उसने शक्ति प्रदान की थी। So what do we learn from the story of Jephthah? तो हम इससे क्या सीखते हैं इफ्ते की कहानी में? Rejections is not the end. अस्वीकार अंत नहीं है। With humility and trust in God, we can come back. नम्रता के साथ परमेश्वर पर विश्वास रखने से हम वापस आ सकते हैं। God can turn all rejections into blessings. परमेश्वर सारे अस्वीकारता को हमारे आशीर्वाद में पूरा कर सकता है। Because of those rejections, you learn to value yourselves. वो सारी अस्वीकृति को हम अपने आप को महत्व देना सीखते हैं। It motivates you to try harder, हमें प्रोत्साहन करता है and it reveals to you the reason that why you need to go through that season. और ये प्रकट करता है कि हमें उस
समय से क्यों गुजरना पड़ा? You are not worthless. आप बेकार नहीं हैं। It's just God who wants to give you the best. ये है कि परमेश्वर आपको श्रेष्ठ देना चाहता है। Extraordinary things are going to happen in your life असाधारण चीजें आपके जीवन में होने वाली by है God's gracious hands. Amen. परमेश्वर की कृपालु हाथ। Always remember, seasons changes. हमेशा याद रखिए, समय बदलता है, Struggles don't last forever. संघर्ष अंत तक नहीं रहता। Believe God for miracles and for blessings. चमत्कार और आशीर्वाद के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें। One season David was a shepherd and the next season he was a king. एक समय दाऊद चरवाहा था और दूसरे समय वो राजा बना। One season Ruth was working in the field and the next season she was owning the same field. एक समय रुत खेत में काम करी थी और दूसरे समय वो खेत उसके नाम पे हुआ। One season Mordecai was sitting outside the king's palace and the next season he was inside the palace. एक समय मोर्देक राजा के महल के बाहर बैठा था और दूसरे समय उसी महल के अंदर था। So we serve the God who turns the things around, the God of unmerited favor. हम उस परमेश्वर पर सेवा करते हैं जो चीजों को बदलता है। May God bless you all through this word. परमेश्वर आप सभी को इस वचन से आशीष करे। We learned a good message from Sister Hepzibah preaching. Now I will call Sister Daya to come upon the stage and further share the word of God. Give a round of applause to them. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I welcome you all again in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। Hallelujah. Such a pleasure to see you all in the presence of Almighty. मैं आप सभी को यहाँ देख के बहुत खुश हूँ। आप खुश हो कि नहीं? फिर उदास क्यों बैठे हो? Be happy, rejoice in the God. Hallelujah. ये सुंदर शाम के लिए हम प्रभु का जोर से धन्यवाद करेंगे। सभी अपने हाथों को ऊपर करके हालेलुया बोलिए। हालेलुया, हालेलुया, जोश में। आप सभी को देख के लग रहा है डर गए हो। जगता का स्टोरी सुन के डर गए हो सब? नहीं ना? हालेलुया। मैं ये समय देने के लिए हमारे गॉस्पेल सेंटर के प्रेसिडेंट पप्पा जी का और पास्टर अल्विन जी का धन्यवाद करती हूँ। सुंदर समय देने के लिए। आई एम नथिंग, योग्य नहीं हूँ यहाँ खड़े रहने के लिए, फिर भी प्रभु की दया कृपा से मैं यहाँ खड़ी हूँ। ना ही मेरे बल और शक्ति ज्ञान से। आई एम नथिंग फ्रेंड ऑफ गॉड। हालेलुया। ओनली बिकॉज ऑफ गॉड मुझे यह अवसर मिला है। हमारे पप्पा जी और अल्विन जी ने जो अवसर दिया है, मैं उसको थोड़े समय मेरे जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में जो कुछ मैंने अब तक सीखा है, थोड़ा बहुत आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हालेलुया। टुडे आई लाइक टू शेयर समथिंग जो मुझ में बदलाव प्रभु ने लाया है, जो मेरे विचारों में, मेरे लाइफ में, मेरे एटीट्यूड में, मेरे थॉट्स में। हालेलुया। ओके, लेट मी आस्क यू समथिंग बिफोर आई स्टार्ट। कितने जनों ने बाइबल लाया है? Where is your Bible? Can you please show me? Where is your Bible? Okay. और कितने जनों ने नहीं लाया है? प्लीज हाथ ऊपर कीजिए। ओके, मैं बेसिक थिंग से स्टार्ट करना चाहती हूँ। उससे पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। छोटी सी प्रार्थना से हम शुरुआत करेंगे। मैं चाहती हूँ आप सब आंखें बंद कीजिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार राजा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। अच्छा समय आपने दिया अब तक हमारे बच्चों के जरिए प्रभु जी, स्किट के जरिए प्रभु जी, अच्छे वर्शिप आपने दिया, अच्छे वचन आपके बेटी के जरिए आपने हमें
बताया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। रचा आगे के समय को मैं आपके अधीन में देती हूँ। प्रभु जी आप मेरे साथ रहिए। प्रभु जी मेरे में ज्ञान और बुद्धि की कमी है, आप मुझे भरिए। प्रभु जी आपके वचन मेरे मुंह में रखिए। प्रभु जी आप बातें करने से बच्चे आकर्षित होते हैं परमेश्वर, और मैं एक बदलाव लाइए आज की शाम में। प्रभु जी एक आश्चर्य कार्य करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन आमीन। So, how many people having a Bible? Okay, fine. और जिसके पास नहीं है? Okay. किसके पास मोबाइल है? Everybody is having mobile? All of you. You don't have. Okay, you are a good child. How many people are having mobiles? Okay. Well, good. हमारे पास जब भी हम यूथ मीटिंग्स में, मैं अपना टेस्टिमनी बताना चाहती हूँ। जब हम बच्चे थे मम्मी पापा के साथ, हम जब यूथ मीटिंग्स में जाते थे, जब कंडक्ट किया करते थे उस चर्च में, हमारे एक पासवान आया करते थे। ही वॉज आई थिंक ही वॉज अ लेक्चरर, और वो बड़े प्रभु के दास थे। उनका नाम मनोहर था। अभी वो नहीं है प्रभु के, मतलब ही इज नॉट मोर। जब भी हम जाते थे उस रूम में, हम कदम रखते थे, हमारे हाथ में बाइबल, डायरी, पेन होना बहुत जरूरी था। दिस इज द बेसिक थिंग्स विच शुड बी हैव। हम जब यूथ मीटिंग्स में आते हैं, हम बस ऐसे ही नहीं आना है। हम जब प्रभु की उपस्थिति में जा रहे हैं तो हमें मोबाइल नहीं, बाइबल होना जरूरी है। किसी किसी को मोबाइल सुनाई दे रहा, राइट? बाइबल और मोबाइल, वेरी गुड। आप मुझे आंसर करोगे तो मुझे लगेगा यू आर लिसनिंग मी, अदरवाइज आप बोर हो रहे हो, राइट? ओके फाइन। हम उस रूम में जब कदम रखते थे, हमारे पास बाइबल, बुक, आइदर डायरी, पेन होना बहुत जरूरी था। और जिसके पास नहीं होता था, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, उस दिन उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलता था। ये मैंने सीखा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। सच अ बेसिक थिंग्स वी शुड हैव। अगर नहीं होता, पनिशमेंट मिलता। अगर हम लोग यहाँ बैठते, जब हमारे वो पासवान प्रीच करना स्टार्ट करते थे, अगर हमारा नजर इधर उधर भी जस्ट फॉर ए सेकेंड हमने यहाँ देखा, ही हैज टू कम ऑन, गेट अप। अब तक मैंने क्या प्रीच किया बताओ सबके सामने। ऐसा होना चाहिए ना हमारे यहाँ भी। फिर बोले कि हम भी क्लास में आ रहे, स्कूल में, और यहाँ डिफरेंस क्या है? बट मैं सोचती हूँ स्कूल से भी बढ़कर है। ये बहुत ही पवित्र स्थान है। हमें भय और भक्ति से आना है। हम जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस में जाते हैं, बुक्स वगैरह सब परफेक्टली होना चाहिए, या लेक्चरर्स, टीचर्स हमें पनिश करते, उसी तरह जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, हमारे पास बाइबल होना बहुत जरूरी है। Bible protect us. Bible protect us. Yes. And mobile protect us. Bible. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मैं तो मेरे बच्चे को बचपन से सिखाया, उसको बिना बताए उसके बैग में मैं छोटा सा बाइबल रखती थी। अभी बड़ा हो गया है, अभी रखने नहीं देता। पर उसे बिना बताए अभी भी उसके बैग में हमारा ब्लड ऑफ जीसस का बुक मैं हमेशा साथ में रखती हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ जो पप्पा जी ने उसमें वचन लिखा है, दैट वर्ड ऑफ गॉड प्रोटेक्ट्स माय चाइल्ड। हालेलुया। क्योंकि मुझे विश्वास है जहाँ कहीं हम मोबाइल लेके जाओ, आप लोग के साथ रहिए, मुझे भी मोबाइल आ रहा है, बाइबल लेके जाते हैं, वहाँ प्रभु हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। हालेलुया। मैं एक महान प्रभु के दास के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। आपने सुना होगा स्मिथ विगल्सवर्थ के बारे में। कितने जनों ने सुना है? आमेन। हालेलुया। प्रभु के दास जब भी वो बाहर जाते, ड्रेसअप करते हैं, उनका जो भी हो, कैजुअल हो, फॉर्मल हो, सूट हो, सफारी हो, वो एक बात कहते हैं, मेरा अटायर जो भी मैं पहनता हूँ, मेरे बाइबल के बिना मेरा अटायर अधूरा है, मेरा पोशाक अधूरा है। क्या हम कहते हैं? वो कहते हैं जो मैं ड्रेसअप करता हूँ, अगर मेरा बाइबल मेरे हाथ में नहीं है तो मैं अधूरा हूँ। सच अ वंडरफुल थिंग, राइट?
हम कितने जन कह सकते हैं नो, जब भी हम बाहर जाते हैं मोबाइल के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, हमारा ड्रेसअप अधूरा है। भले हम कितना भी महंगा कपड़ा पहने पर हमारे पास मोबाइल चाहिए, राइट राइट गाइस, श्योर। पर स्मिथ वेगलस्वर्थ, इनके बारे में जब मैंने आर्टिकल पढ़ा, जब मैं पढ़ती हूँ प्रभु के दास के बारे में, बिलीव मी, वो जो कह रहे हैं बिना बाइबल के उनका अटायर अधूरा है, उनका पहनावा अधूरा है। ये हमारे जीवन में भी हमें सीखना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज का थोड़ी देर जो वचन मैं देने जा रही हूँ, मेरा टॉपिक है, शीर्षक है हाउ टू ऑनर हेवनली फादर। हाउ टू ऑनर हेवनली फादर, पिता परमेश्वर का सम्मान कैसे करेंगे। कोई बता सकता है हम पिता परमेश्वर का सम्मान कैसे करेंगे? एनीबडी? किस चीजों से हम पिता परमेश्वर का सम्मान कर सकते हैं? हाउ वी विल ऑनर अवर गॉड? ओके, एंड टॉकिंग टू हिम, टॉकिंग टू हिम, ओके 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 ओके, फाइन, गुड। बहुत सारी चीजों से हम ऑनर कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, आदर कर सकते हैं। पर मैं एक विषय आपको बताना चाहती हूँ। पहले तो हम सारे अपने बाइबल खोलिए, पुराने नियम में लास्ट वन, मलाकी। फर्स्ट चैप्टर 6th वर्सेस, फर्स्ट चैप्टर 6th वर्सेस, मलाकी फर्स्ट चैप्टर 6th वर्सेस। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। इनफ, थैंक यू। पुता पिता की पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। पुत्र पिता का, दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। परमेश्वर पिता याजकों से पूछ रहा है। अगर वो पिता है तो उसे हम सम्मान दे रहे हैं, उसे हम आदर दे रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कहाँ है मेरा आदर, कहाँ है मेरा सम्मान। सिर्फ एक एज अ वर्ल्डली हम फादर को इतना रेस्पेक्ट करते हैं। एक एम्प्लॉयमेंट जहाँ काम करता है वो अपने बॉस को कितना आदर देता है, सम्मान देता है। क्या हम हमारे पिता परमेश्वर को, हेवनली फादर को वो आदर सम्मान दे रहे हैं? क्या आप लोग दे रहे हो? किस चीजों से दे रहे हैं हम, कौन सी चीजों से हम दे सकते हैं, उस विषय को हम बात करेंगे। मैं आपके सामने 5 विषय को रखना चाहती हूँ जिस चीजों से हम प्रभु का आदर कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो व्हाट इज ऑनर। ऑनर मीन्स ऑनर मीन्स रेस्पेक्ट, एंड इसका मतलब है उसकी प्रशंसा करना, एडमायर हिम, उसको सुनना, लिसन टू हिम, और हर चीजों में उसको प्राथमिकता देना, प्रेफरेंस देना, प्रायोरिटी देना। क्या हम दे रहे हैं? आर यू गिविंग? एडमायर कर रहे हो उनकी हर चीजों में? आपके पास जो भी चीज है उससे आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो, उससे सुन रहे हो, सुनने तक ही है कि उसमें चल रहे हो, अमल कर रहे हो। आमेन, हालेलुया। गुड चिल्ड्रन, गुड यूथ, गॉस्पेल सेंटर के वाइब्रेंट्स आर वेरी गुड। हालेलुया। मैं एक चेंजेस देख रही हूँ यूथ में। जब से हमारा यूथ मीटिंग हुआ है गौराई बीच में, गौराई के मंदिर में, आई थिंक सो मेनी चेंजेस आर देयर इन यूथ, राइट? हालेलुया। वाइब्रेंट, वाइब्रेंट मीन्स कलरफुल, और एक्साइटमेंट, जोश। You people ask now, how is Josh? That's what. Okay, जब हम प्रभु में हैं, वही जोश हमें होना चाहिए. Not in a worldly things. If you are in the presence of Almighty
एक्साइटी, शो योर जोश। जब आप लोग जोश में रहते हो तो हम प्रीच करने वाले को और भी खुशी होती है, राइट? यस, हम 5 चीजों को देखेंगे किस तरह हम प्रभु को ऑनर दे सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, ऑनर गॉड विथ योर टाइम। ऑनर गॉड विथ योर टाइम। आपके समय से प्रभु का आदर कीजिए, आपके समय के साथ प्रभु का सम्मान कीजिए। हालेलुया। आर यू देयर पीपल? ओके। समय, टाइम इज वेरी प्रेशियस। सभी जानते हैं समय सीमित होता है, एक बार निकल जाता है तो दोबारा आता नहीं है, राइट? हम समय को किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं हमारे प्रभु की उपस्थिति में? क्या मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग सुबह से लेके रात तक अपने समय को किस तरह यूटिलाइज कर रहे हो? कैन यू टेल मी, एनीबडी? हाउ मच टाइम यू आर गिविंग टू द गॉड? हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग इन द गॉड? I know one thing. Whenever we wake up in the morning, first, what is in our hands? Praise Lord. Praise the God. Amen. And other people, other youth, what is in your hand? Exactly, mobile. See, my son is hiding. Not only my son, so many are there gathered here, sitting over there, right? हम सुबह उठते ही हमारे हाथों में पहला मोबाइल होता है। हम देखते हैं, बाप रे, रात को इतना समय हो गया, हमारा मोबाइल क्या हो गया, राइट? हम देखते हैं, उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करेंगे, कितने मैसेजेस इंस्टा में, फेसबुक में, क्या क्या हमारे पास आया, इतना रात का समय बीत गया, मेरा मोबाइल भूखा होगा मेरे बिना। मैं तो मेरे जेरी को बोलती हूँ, तेरा बच्चा किधर है? बिलीव मी, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, तुम्हारा बच्चा किधर है, वो रो रहा होगा। जब भी मॉर्निंग, whenever you wake up, प्लीज जब भी आप लोग उठते हो, पहला काम आपका टाइम प्रभु के उपस्थिति में अपने आप में घुटने टेके प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु, आज का दिन आपने हमें दिया है, आज के दिन, पूरे दिन हमें संभालिए, मेरे परिवार को संभालिए। आज का जो समय है प्रभु, जो मैं आप में किस तरह इस्तेमाल करूँ, मैं कैसे आपकी उपस्थिति में और अपने समय को दे पाऊँ। मुझे आपको एडमायर करना है, प्रशंसा करना है प्रभु जी, मेरे समय को यूटिलाइज करना है। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, जब आप ये समय का बीज बोओगे तो आप इसका प्रतिफल जरूर देखोगे। आमीन, हालेलुया। हमें समय का बीज बोना है, पैसे मतलब दशमांश में ही नहीं, हमें समय भी प्रभु पे देना है। हमारा दशमांश 24 आवर्स में कितने घंटे होते हैं? यस, हमें वो समय प्रभु को देना है। हमारा दिन का समय, टाइम का दशम भाग भी देना है। आमीन, हालेलुया। हम एफएससी में देखते हैं 5th chapter 15 and 16 में। एफिशिएंसी 5th chapter 15th verses। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। और अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। दिन कैसे है? दिन को कैसे इस्तेमाल करना है? इंस्टा में, पबजी में, फ्री फायर में, रील्स में, राइट? नहीं ना? हमें समय बुद्धि से चलना है, ज्ञान से चलना है। अभी आप लोगों को लगता है समय बहुत है, जैसे एग्जामिनेशंस आते हैं, जब ही फाइनल एग्जाम्स आएंगे तभी हमारे बच्चे जाग जाते हैं 2 महीने पहले, अरे बहुत टाइम है, बाद में पढ़ेंगे यार, इतना जल्दी पढ़ के क्या करना है। वो बहुत पढ़ा हुआ बच्चा भी तो उतना ही लाता है, मैं 2 महीने में करके दिखा दूंगा। मुझे चैलेंज करते मेरे बच्चे, ट्यूशंस के बच्चे, वेरी स्मार्ट, बोलते मैं सभी से पढ़ के क्या फायदा है, पढ़ेंगे ना फाइनल एग्जाम्स में। बट हमें बुद्धि से चलना है। हमें कैसे चलना है? बुद्धि से चलना है। समय बहुत सीमित है प्रियजनों,
समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमारे समय से हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, हर समय प्रभु की प्रशंसा करना है, प्रभु में इस्तेमाल करना है। जब भी हमें समय मिलता है हमें प्रभु की उपस्थिति में आना है। अच्छे पासवान हमें मिले हैं, अच्छा कुछ हमें सिखाते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में हम कैसे आगे बढ़े, हमें वो सीखना है। जितना सीखना मिलता है उसे सीखिए, टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए। एंड आई थिंक यू ऑल आर लकी पीपल टू हैव अ पास्टर लाइक एल्विन। हालेलुया, बहुत कुछ सीख सकते हो, राइट? और जब भी समय मिले यूथ मीटिंग में आया कीजिए, इससे आपके स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत चेंजेस होते हैं। जब हम सुनते हैं प्रभु की बात, वर्ड ऑफ गॉड को हम सुनते हैं, हमारे में एक बदलाव आता है। हालेलुया। हम उसी समय को अगर बाहर आप ऐसे आज आप यहाँ हो, ये प्रभु का धन्यवाद करती हो। कितने बच्चे हैं जो वीकेंड से कहाँ जाते हैं, कहीं आई कांट टेल यू। मैं जब सुनती हूँ मैं डरती हूँ, बच्चे कहाँ जा रहे हैं आज के जनरेशन। पता है आजकल जो एक्सेस है पाप का, आई थिंक किसी सेंचुरी में ये नहीं था। मोबाइल इज द वर्स्ट थिंग, मोबाइल इज द वर्स्ट थिंग। कहते हैं मोबाइल गैजेट बहुत जरूरी है, हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है, बट नो, आई डोंट थिंक सो। मुझे जब हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल हमें सब कुछ सिखा देता है, सब कुछ सिखा देता है। मैं अपने समय को हमेशा बाइबल पढ़ने में लगाती हूँ। जैसे आप लोग ये मोबाइल लेके बैठते हो, जहाँ कहीं बैठते हो, मेरे घर में आज इट इज ये बाइबल हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं सोफा में बैठूं, मैं चेयर में बैठूं, या मैं बच्चों को पढ़ाते वक्त या बेडरूम में बैठूं, आई डोंट नो, आई हैव अ हैबिट ऑफ दैट कि बाइबल मेरे साथ रहे। वो मुझे प्रोटेक्शन देता है, मुझे एक लगता है मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है। हालेलुया। तो हम हमारे समय को प्रभु की प्रशंसा करने में, टाइम यूटिलाइज करने में, फर्स्ट थिंग हम कैसे प्रभु को आदर और सम्मान कर सकते हैं? ऑनर विथ योर टाइम। हालेलुया। सेकंड पॉइंट हम लोग जाएंगे, ऑनर गॉड विथ योर टैलेंट। ऑनर गॉड विथ योर टैलेंट। बहुत जनों में बहुत टैलेंट है, मैं देखती रहती हूँ। हालेलुया। अपनी प्रतिभा से प्रभु का सम्मान और आदर कीजिए। प्रतिभा यानी टैलेंट, और हिंदी में गुण, योग्यता, राइट? हुनर। हम मैथ्यू चैप्टर 25 चैप्टर को देखेंगे। मैथ्यू 25 चैप्टर 14 to 30 वर्सेस। अब यू कैन रीड, इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप रेफरेंस लिख लीजिए और घर जाके प्लीज रीड इट। आई डोंट nobody will read it. I know very well nobody will read it, but this is the way to tell us क्या करें, हमें बोलना पड़ता है, राइट? ओके, मैथ्यू 25 14 to 30 वहां पे लिखा हुआ है, एक परदेसी के बारे में लिखा है। वो अपना संपत्ति बेच के 3 जन को, उनके दासों को वो कुछ रुपए देते हैं, जैसे कि गोल्ड देते हैं। पहले व्यक्ति को वो 5 बैग्स ऑफ गोल्ड देते हैं। कितने बैग्स? 5। और सेकंड व्यक्ति को 2 बैग्स ऑफ गोल्ड देते हैं, और थर्ड पर्सन को 1 बैग ऑफ गोल्ड देते हैं, राइट? आप लोगों ने सुना ये स्टोरी? ओके। तो जब वो उसका स्वामी होता है, वो कहीं बाहर चले जाता है और उनको कहता है, ये मैंने दिया है, मेरे आने तक इसे आप संभाल के रखो। हालेलुया। तो पहला वाला सोचता है, मेरे स्वामी ने मुझे 5 बैग दिया है, मैं इसे कैसे डबल करूं, मैं कैसे इस्तेमाल करूं? तो वो कुछ काम धंधे में लग जाता है, कुछ चीजें खरीदता है, उसे बेचता है। तो 5 बैग्स को वो डबल करता है। हाउ मच? 10 बैग्स। सेकेंड पर्सन, वो भी कुछ लेन देन काम काज करके 2 बैग्स को ही डबल्स हिज बैग एट 4। एंड लास्ट पर्सन बहुत ही टैलेंटेड है, हमारी तरह बहुत टैलेंटेड है, ही इज ओवर टैलेंटेड, कि जो चीज है उसे संभाल के रखना है, हमें यूटिलाइज नहीं करना है, किसी में इस्तेमाल नहीं करना है कि नहीं? हमारी तरह जो एक बैग देता है उससे वो कहता है, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे स्वामी आने तक इसे मैं छुपा के रखूंगा। तो वो जमीन खोद के उसमें गाड़ता है और छुपा के रखता है। और जब उसका स्वामी आता है, वो पूछता है पहले व्यक्ति को बुला के, तुमने क्या किया? वो कहता है, स्वामी मैंने अपने
आपने जो दिए हुए धन को मैंने व्यापार में लगाया, उसे मैंने डबल किया है. So it gives him back 10 bags. Second person does same thing. Third person को बुलाता है, वो कहता है तुमने क्या किया? वो कहता है प्रभु स्वामी आपको बीज बोना बहुत पसंद है ना, मैंने भी उस मिट्टी को गाड़ के उसमें दबा के रखा है. तो स्वामी क्या कहता है? स्वामी क्या कहता है? उसे डांटता है क्योंकि उसने उसकी बुद्धि को यूज नहीं किया, उसके टैलेंट को यूज नहीं किया. ये जो 2 पर्सन है वो अपने टैलेंट को यूज करके उसे डबल किए हैं और उसके स्वामी क्या हुआ? खुश हो गया. थर्ड पर्सन उसने यूज नहीं किया. एज इट इज प्रभु ने हम सभी को टैलेंट दिया है. टैलेंट इज गॉड गिफ्ट, राइट? प्रभु दिया हुआ एक वरदान है जिसे हमें अपने आप में खोजना है. हमें क्या टैलेंट है? बिलीव मी, ट्रस्ट मी. मैं भी जब यहाँ आई मैं बहुत डरती थी स्टेज पे खड़े रहने के लिए. पास्टर जी, पप्पा जी बोलते थे, मैं हमेशा नहीं बोलती थी, मुझे डर लगता था. पर उन्हें कहीं ना कहीं प्रभु ने उनके द्वारा मुझे यह अवसर दिया है यहाँ खड़े रह के आपके बीच में बातें करने के लिए. आमीन. और आप लोगों को भी हमेशा यह अवसर मिलता है. किसी ना किसी चीज में उन लोग आपको आगे आने के लिए कहते हैं, राइट? और बिलीव मी, ये जो दिया हुआ अपॉर्चुनिटी कभी गंवाना नहीं, क्योंकि कहीं मिलता नहीं है ये. हालेलुया. मैं कभी सोची नहीं जय यहाँ खड़े रह के प्रेयर करेगा, कभी सोचा नहीं यहाँ खड़े रह के प्रचार करेगा, पीछे खड़े रह के वर्शिप करा. ही वॉज द वन ऑफ द लेजीएस्ट पर्सन. बिलीव मी, बहुत सुस्तर है, बहुत. इतना लेजी होता, मुझे डर लगता है. मैं हमेशा पास्टर जी से कहती हूँ, पास्टर जी आप उसे थोड़ा एनकरेज कीजिए, फोर्स कीजिए. ये हमारे में टैलेंट बहुत है, उसमें टैलेंट बहुत है. जो भी काम तो ऐसे करेगा, फिर बाद में बस इतना दिया ना, इतना ही करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा. ये नहीं, हमें जो टैलेंट है उससे हमें यूज करना है. जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिलता है उसे यूटिलाइज करना है. जो टैलेंट आप में, गाने का टैलेंट है, वचन का टैलेंट है, प्रार्थना का टैलेंट है, यूथ को आगे ले जाने का टैलेंट है, बहुत सारे टैलेंट से भरे हुए हो. आई एम श्योर हमारे बच्चे बहुत बहुत ही टैलेंटेड है, राइट? आमीन. हमें डरना नहीं है. हम इंग्लिश में प्रॉपर नहीं है, हम हिंदी में प्रॉपर नहीं है, वो बहुत अच्छे से करता है, ये बहुत अच्छे से करती है. नो, यहाँ पे वर्ल्डली टैलेंट काम नहीं आता है. जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहता है, पवित्र आत्मा ही हमें चलाता है. हालेलुया. सिर्फ हमें आगे बढ़ना है. प्रभु उन्हें ही यूज करता है जो तैयार रहते हैं प्रभु के लिए कुछ करने के लिए. ना कि नहीं बाबा, नहीं बाबा, और जिंदगी भर नहीं 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 करते ही रह जाता है. और जो टैलेंट दिया हुआ है वो हमें इस्तेमाल करना है, ना कि हमारे मोबाइल पबजी में. मैं बहुत सारे जन को जानती हूँ, रात भर पबजी खेलते रहते हैं. वो टाइम की बर्बादी होती है. आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड. Please listen, don't waste your very valuable time, very valuable talent. Use in the God. ये जब आप अभी से यूज करोगे, आगे चल के believe me, you will be the blessed person. Amen. बहुत जनों ने कहा है हम छोटे हैं, हम ऐसे. प्रभु किनको चुनता है? पहिलोटा. प्रभु का उत्तम बलिदान क्या होता है? पहिलोटा, जो बहुत ही छोटा. सैमुएल के साथ प्रभु ने कौन से उम्र में बात किया है? आफ्टर 20, 25. At what age God has spoken to Samuel? Can you, Brian? Anybody? Sorry? No? Yes, and can do? Three. At the year of 3. प्रभु ने उनसे बात किया. और जेरिमाय से कब बात किया प्रभु ने? नॉट दिस जेरिमाय, बाय दिस जेरिमाय. कभी बात किया? कौन से उम्र में? एनीबडी? यस, जेरिमाया. वो बाइबल देख रहा है. एट व्हाट एज गॉड हैज स्पोकन? 6 साल. वो जब भी प्रभु ने उनसे बात किया, जेरिमाया ने भी वही बोला था, प्रभु मैं तो अभी बच्चा हूँ,
पर प्रभु ने कहा तू बच्चा नहीं है, ये मत कहना तू बच्चा है, मैं अपने शक्ति और बल से तुझे चलाता हूँ। हालेलुया। और प्लीज अभी से आप लोग भी कोई नहीं कहोगे कि हम बच्चे हैं, हमसे नहीं होगा। Whatever the chance you are getting, please use it in the God. Hallelujah. So first one is honor with yes. Second one. So you are listening me. Thank you. Hallelujah. Now third point, honor God with your temple. Honor God with your temple. Temple means anybody? Exactly. Our body. Very good. Our body. अपने मंदिर के साथ प्रभु का सम्मान करें, अर्थात अपने शरीर के साथ हम अपने बॉडी के साथ प्रभु का सम्मान करना है। आप लोग कहोगे कि बॉडी के साथ कैसे सम्मान करते हैं? वचन में लिखा है 1 Corinthians 6 chapter 1 Corinthians 6 chapter 15th verses। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या को अंग बनाऊं? कदापि नहीं। 19th verses। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? आमेन। हालेलुया। हमारा शरीर किसका है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे बॉडी के साथ भी, हमारे शरीर के साथ भी हम प्रभु की प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। मैं एक छोटा एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। एक स्त्री थी, एक मदर थी जो अपने बच्चे को नहलाते वक्त हमेशा वो स्त्री इस तरह प्रार्थना करती थी। जब भी वो अपने बच्चे के हाथ मलती थी वो कहती थी, प्रभु ये मेरे बच्चे के हाथ सदैव आपकी ओर ऊपर उठे, आपकी ओर उठे, हमेशा आपका धन्यवाद करते रहे। वो जब अपने बच्चे के आंख मलती थी वो कहती थी, प्रभु ये आंखें हमेशा आपको देखे, अच्छाई को देखे, आपकी ओर हमेशा मेरे बच्चे की आंखें रहना चाहिए। जब वो कानों को मलती थी वो कहती थी, प्रभु ये कान मेरे बच्चे के सदैव आपकी बातें सुने, अच्छी बातें सुने। जब वो बच्चे के पैर को मलती थी वो कहती थी, ये पैर हमेशा सदैव आपकी ओर दौड़े, आपके सुसमाचार की ओर, आपके भवन की ओर, आपकी उपस्थिति की ओर। देखो हम अपने शरीर से क्या क्या कर सकते हैं। प्रभु ने हमें जो ये शरीर दिया है उसे संभालना है। हमें इस दुनियादारी में हमारे शरीर को गंवाना नहीं है। यू आर ऑन द मेन स्टेज ऑफ योर लाइफ, राइट? आपको इस समय, इस एज में वर्ल्डली थिंग्स बहुत आकर्षित करते हैं, बट यू आर इन क्राइस्ट, ये भूलना नहीं है। उन चीजों को आपको मारना है, उन चीजों को आपको गाड़ना है, उन चीजों की ओर अपना ध्यान नहीं देना है। शैतान बहुत चालाक है, वो किसी ना किसी चीजों से आप लोगों को आकर्षित करता है, पर हमें उससे प्रायोरिटी नहीं देना है, उससे हमें गाड़ना है, उसे हमें जलाना है। हमें सिर्फ हमारे शरीर से प्रभु की महिमा करनी है। हालेलुया। क्योंकि हमारे शरीर में पवित्र आत्मा निवास करता है। आमेन। हालेलुया। आप लोग कैसे करोगे आपके शरीर को? आपके आंखों से क्या देखोगे? आमेन। कानों से? हाथों को प्रभु की ओर उठाएंगे, हमारे पैरों को प्रभु के मार्ग में चलाएंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। दिस वाज द थर्ड पॉइंट। हम फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, कोई बोल सकता है और किस चीजों से हम प्रभु के सम्मान आदर कर सकते हैं? यस, बट माय पॉइंट इज हॉनर गॉड विथ योर ट्रेजर। हालेलुया। मतलब अपने खजाने या अपने पैसे से प्रभु धन संपत्ति से सम्मान कर सकते हैं। मलाकी 3rd chapter 10th verses। मलाकी 3rd chapter 10th verses। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे।
और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि आमेन। हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया। ओके, हम प्रभु को कैसे सम्मान आदर कर सकते हैं? जो हमारे पास है, धन संपत्ति, ऑफरिंग, राइट? हालेलुया। किसी ने कहा है गिविंग इज ऑल्सो वर्शिप, देना भी एक वर्शिप होता है। और इसीलिए नहीं देते कि प्रभु को आपके पास से कुछ चाहिए, हम बीज बोते हैं, हम सैक्रिफाइस जो हम प्रभु को देते हैं उसमें एक आनंद होता है, एक जॉय होता है, एक थैंकफुलनेस होता है। हमें देना सीखना है। कहते हैं ना, देना बहुत ही उत्तम होता है लेने से ज्यादा। हालेलुया। अभी से आप ये आदत लगाओ, जो भी आप छोटे छोटे काम, पार्ट टाइम्स, वॉट एवर यू पीपल डू, हमें बीज बोना है पैसे का। प्रभु को अपनी धन संपत्ति से भी खुश कर सकते हैं। प्रभु उससे आपको क्या करेंगे? डबल टिबल, क्या कहते हैं? 10 गुना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, राइट? He will multiply you, He will multiply you। मैंने अपने जीवन में देखा है, मेरे परिवार में मैंने देखा है, मेरे भाइयों को मैंने देखा है, बहुत सारे सिंस लोग जब से काम करना स्टार्ट किए, बिलीव मी, अब तक वॉट एवर दे गेट ना, लोगों ने फर्स्ट दशम भाग दिए बिना रहते नहीं है। मम्मी ने हमें वो आदत लगाया। मैं बचपन से मेरे माँ को देखती थी, जैसे मेरे पापा आते थे, फर्स्ट डे जब सैलरी मिलता था, पहले सैलरी लेके उसमें से दशम भाग दिखाते थे और एक एनवेलप निकालते थे मिनिस्ट्री के लिए, जो ऑर्फन्स के लिए। 2 एनवेलप मैंने, आई थिंक दानू जितनी है, तब से मैंने मम्मी को देखा है। वो दोनों लिफाफों में वो डाले बिना वो पैसे को यूज नहीं करती थी। एंड बिलीव मी, आज के दिन में वी आर वेल सेटल्ड बिकॉज ऑफ गिविंग। हालेलुया, ऑल आर वेल सेटल्ड। देने में आशीष मिलता है, हमारे मिनिस्ट्री को देने में हमें कोई कमी नहीं होती है। प्रभु हमें डबल टिबल ब्लेस करता है। आपके जीवन में अब से सीखना है, प्रभु को देना है। मैं हमेशा बोलती हूँ पापा से, पापा मेरा बेटा इस मिनिस्ट्री के लिए एक फाइनेंशियल कंबा बनना चाहिए। हालेलुया। यू ऑल, वो अकेला नहीं, आप सभी मेरे बच्चे हो, आप सभी मेरे बच्चे हो। मैं आप सभी को बोल रही हूँ, अब से सीखिए, जो है प्रभु को देना है। हमें कभी कमी नहीं होगी। मैंने अपने बचपन से एक गौर किया है, मैंने मतलब बाहर जो बेगर्स होते हैं, जो मांगने वाले होते हैं, आपने कभी देखा कोई क्रिश्चियन बेगर को? Do you see anybody Christian beggar? मैंने इतने तक, मतलब जो अभी मेरा एज है, अब तक मैंने कभी नहीं देखा है, कभी नहीं। एक मसीह लोग कभी किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं, क्योंकि our provider is Almighty। Amen। हमें देने में आशीष पाना है, हर चीजों से आशीष पाना है। This was our 4th point, right? Can you repeat first point? Complete sentence. Second. Third. Fourth. Amen. Hallelujah. Last point, but not the least, honor God with your heart. Honor God with your heart. कैसे? अपने हृदय से प्रभु का सम्मान करना है। हालेलुया। हृदय से। Proverbs 4 chapter 23, Proverbs chapter 4 23 verses। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। 23-26 Proverbs 23rd chapter 26 verses। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। हालेलुया। हृदय से वचन क्या कह रहा है? हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा। किसकी ओर लगाना है? कि दुनिया की ओर, कि दोस्तों की ओर, कि मोबाइल्स की ओर? हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारे बच्चे बहुत ही स्पिरिचुअल हैं। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरे
अष्ट मेरे चाल चलन पर लगी रहे। हमारी दृष्टि किस पर रहनी चाहिए? हम और एक विषय मतलब हृदय से। ये हृदय क्या होता है? यू मस्ट लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, ऑल योर सोल, ऑल योर माइंड, राइट? जब हम बातें करते हैं यहाँ जो होता है वही निकलता है, राइट? हम कुछ और सोचते हैं, कुछ और बोलना चाहते हैं, पर यहाँ जो होता है वही हम करते हैं, राइट? हमें हृदय को स्वच्छ रखना है, शुद्ध रखना है, इसमें गंदगी ना होनी चाहिए। हालेलुया। हमारे हृदय को पवित्र रखना है क्योंकि हम पवित्र पिता की आराधना करते हैं। हमें किस दिल से, किस मन से आराधना करनी चाहिए प्रभु की? पवित्र हृदय। आपके हृदय में कौन रहता है? What kind of heart does God want? हमारे हृदय में कौन रहता है? BFGF? No. हमारे हृदय में सिर्फ परमेश्वर रहता है। हमें हालेलुया। गॉड ऐसे हृदय को देखता है जो ह्यूमिलिटी हो, नम्रता हो, दीन हो, आप ईमानदारी को देखता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अब से आप एक आदत लगाइए, नम्रता। ईगो नहीं आना चाहिए हमारे जीवन में। वॉट एवर यू डू, किसी भी क्षेत्र में प्रभु आपको ऊंचा उठाए, बी नम्रता रहिए, बी हम्बल योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। जब हम उस हृदय से प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु हमसे प्रसन्न होते हैं, राइट? हालेलुया। हमें हमारा हृदय स्वच्छ रखना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होना चाहिए, अच्छे गुण हमें होना चाहिए। लोगों के लिए हम हेल्प करना चाहिए, लोगों के लिए हमें भलाई सोचना चाहिए। अगर कोई बड़े आ रहे हैं उनको सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए। और जहां तक मैं हमारे चर्च में देखती हूँ, आई थिंक ऑल आर वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलवेज ग्रीट अदर एल्डर वन, बुजुर्गों को हमेशा हमें हेल्प करना चाहिए। जो हृदय प्रभु का है वो हृदय हमें मांगना चाहिए। परमेश्वर जो आपका हृदय है उसे हमें दीजिए, आपके स्वरूप में हमें चेंज कीजिए। वी नीड योर क्वालिटीज लॉर्ड, राइट? वी डोंट वांट वर्ल्डली क्वालिटीज। अच्छे हैं, let them survive. They are not wrong. I'm not telling world people are wrong, but we are in Christ. We are more better. We are more best, right? Hallelujah. 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 So can you repeat 5 points again? Honor God with your time. Honor God with your talent. Honor God with your temper. Honor God with your treasure. Honor God with your heart. Amen. Hallelujah. तो मैं विश्वास करती हूँ ये 5 पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रहेंगे। एंड ओनली द आवर ऑलमाइटी, वो एक ही है, आदर के योग्य है। हायर ऑनर उनको देना है। हमारे जीवन में जब हम प्रभु को ऑनर करते हैं, हमारे जीवन में सारी चीजें नॉर्मल, हम लोगों का भी आदर करना सीखते हैं, बुजुर्गों का, बच्चों का। ये नहीं कि वो बच्चा है तो उसे कैसे भी बिहेव करना है। नो, दिस इज नॉट आवर क्रिस्टियनिटी। क्रिस्टियनिटी इज अ पीस। हमें सबसे अच्छा रहना है, हमारे में अच्छे गुण होना चाहिए। आपको देखते ही कहना चाहिए, आर यू क्रिश्चियन, राइट? आइए आप मसीह हो। क्योंकि देखो हमेशा कहा जाता है ये प्रभु के बच्चे हैं, वो भी तो प्रभु के बच्चे, बट व्हाई वी गॉट दैट टैग, ये प्रभु के बच्चे, देयर इज समथिंग स्पेशल इन अस, राइट? इन चीजों को याद रखिए। और जैसे आप सवेरे उठेंगे तो पहले प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज का दिन आपने हमें दिया है, कैसे हम आपका आदर करें। टैलेंट, टाइम, ट्रेजर, हमारे टेम्पल के जरिए, हमारे हार्ट के जरिए। टीच मी लॉर्ड हाउ टू ऑनर यू मोर एंड मोर इन माई लाइफ। हालेलुया। एंड थैंक यू सो मच जो समय देने के लिए और मुझे सुनने के लिए। मैं विश्वास करती हूँ इससे कुछ ना कुछ आप लोगों ने सीखा है। एंड 12th स्टैंडर्ड स्पेशली आई कंग्रेचुलेट दोज हु हैव पास्ड। और उनके लिए मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ। जो भी फील्ड में जाओ, अच्छा काम करो। गॉस्पेल सेंटर के लिए एक फाइनेंशियल खंबा बनना है सभी को, यूथ को। आमेन। हालेलुया। थैंक यू सो मच। मैं दया सिस्टर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक अच्छे किस प्रकार हमें सम्मान करना है प्रभु का, वो हमें सिखाया इस प्रकार। और मैं सिस्टर वैष्णवी, सिस्टर हेप्सिबा के भी
उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने वचनों के द्वारा हमें बताया, एक अच्छा मैसेज हम तक पहुंचाया। मैं सिस्टर साक्षी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अच्छे ट्रांसलेट किया, अच्छे हिंदी वर्ड का उन्होंने यूज करके अच्छी प्रकार हमें ट्रांसलेट करके बताया। इसलिए उनका हम धन्यवाद करेंगे। हमारे यूथ के बच्चों का हम धन्यवाद करेंगे, अच्छे स्किट के द्वारा हमें हमारे परमेश्वर का महत्व हमें सिखा कर गए, इसलिए हम उनका धन्यवाद करेंगे। हम इस प्रार्थना को अब समाप्त करने जा रहे हैं। मैं एल्विन पास्टर का स्टेज पे बुलाकर स्वागत करना चाहती हूँ। हालेलुया। आइए बच्चों, अपने आंखों को हम बंद करेंगे। लेट्स क्लोज आवर आईज एंड लुक अनटू गॉड। ग्रेशियस लॉर्ड, हेवनली फादर, thank you for this wonderful evening time you have showered in our life, Lord. Lord, in today's worship, we experience your power. We experience your everlasting anointing in our midst, Lord. Thank you, Lord, for giving this wonderful word, that word which changes our heart and which prepare a blessed way in our life. Thank you, Lord, for the amazing skit. Thank you, Lord, for the amazing word by Sister Epsiba and also Sister Daya. I believe from today onwards, the fire of God will empower every youth through their talent and through their obedience, Lord. Today I submit this worship in your mighty hand, and I believe you will prepare us. You will make our life, you will make this ministry for the greater things, Lord. All glory and honor to you, submitting everything in your mighty hand. In Jesus' name, amen, amen, amen.